खुदा उनके अजीम बाबरकत मीठे जलाली पुरफजल ला तब्दील अब्दी जलाली और मुकद्दस नाम में आप सब देखने और सुनने वालों को सना फरकान लाल और फरकान सामिल लाल का बहुत बहुत सलाम। आज खुदावंद के फजल से हम बहुत खुश हैं, खुदावंद का शुक्रिया अदा करते हैं क्योंकि खुदावंद ने हमारे साथ हमारे भाई साहब को भी आज ये मौका दिया है। ये उसका फजल है कि वो आज हमारे साथ वर्शिप द लॉर्ड में मौजूद हैं। और उनके बारे में मैं थोड़ा सा बताती चलूँ कि उनका नाम इरफान लाल है और उन्होंने खुदावंद को अपना निजात दहिंदा कबूल किया है, अपनी ज़िंदगी को खुदावंद के सुपुर्द किया है। और मैं समझती हूँ फरकान कि कलाम मुकद्दस फरमाता है कि जब कोई खुदा की तरफ आता है, खुदा को अपनाता है, तो लाखों फरिश्ते आसमान पर खुशी मनाते हैं। Praise the Lord. So इरफान भाई, हम आपको वर्शिप द लॉर्ड में वेलकम और खुशामदीद कहते हैं और हम उम्मीद करते हैं कि आइंदा आने वाले प्रोग्राम्स में भी हमारे व्यूअर्स आपको देख सकेंगे। Amen. बिल्कुल ऐसे होगा। Amen. It's a complete honor for me, dear viewers, that my brother, who I remember Sana, me and my mom, we used to just go to Irfan Bhai, I never shared that with you, that we used to actually go to your room and we used to just pray in your room, and oftentimes we would leave a Bible at your room, and you were always close to God, you always loved the Lord, but somehow we knew that there was something missing and we wanted you to be more close to God. And it's so good, our dear brother and sister, that my brothers are with the Lord, and Irfan brother, my dear Irfan brother, is walking with the Lord. He is growing in the Lord, and he recently took his baptism to just declare in front of the whole world that he is going to follow Christ the rest of his life. Amen. तो इस बात के लिए भी खुदावंद का शुक्रिया अदा करते हैं कि खुदावंद रोज बरोज हमारी जिंदगियों में बरकतों को लेकर आता है, रहमतों को लेकर आता है, और बेशक उसका फजल ही हमारे लिए काफ़ी है। तो इससे पहले कि हम अपने प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करें, कलाम के बारे में आपको बताएं, आज की वर्स शेयर करें आपके साथ, मैं चाहूँगी फरकान आप प्रोग्राम की ओपनिंग प्रेयर कीजिएगा और उसके बाद हम अपने प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करेंगे। Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Our Heavenly Father, God, I bring myself and Sana and Brother Irfan, Lord, and we just spiritually kneel down in front of your throne of grace. We spiritually lift up all our viewers in your mighty hands, Lord. Would you reach out and touch everyone in the name of Jesus and bless them in the name of Jesus. Lord, throughout our trouble, you are our deliverer. In the midst of our trouble, you are our peace. God, would you be with the whole world and bless the whole world in the name of Jesus. We pray that for all the law enforcement, Lord, all the leaders of the world, Father, would you be with them and give them supernatural wisdom, Lord, to take care of the world, Father. For you are a great, great God, Lord. So, Father, we pray in the name of Jesus that this trouble that we have right now going on, this coronavirus, Lord, we rebuke it in the name of Jesus. And God, we pray that the whole world will go back to normal in Jesus' name. And God, through our Worship the Lord program, let us be able to touch life. Let us be able to reach out to people, Lord. And would you bless everyone who watches our show in Jesus' precious name. Amen. तो जी अपने प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करते हैं और मैं चाहती हूँ कि इरफान भाई से ही पूछा जाए कि वो आज खुदावंद के ज़िंदा पाक कलाम में से कौन सी वर्स को हमारे साथ शेयर करेंगे। खुदावंद के पाक कलाम में तो बहुत सारी अच्छी बातें लिखी हुई हैं, लेकिन आजकल हम पढ़ रहे थे फर्स्ट जॉन, तो उसकी हम 4 बाब की 20वीं आयत देखेंगे, जिसमें यूँ लिखा है, If someone says, I love God and hates his brother, he is a liar. For he who does not love his brother whom he has seen, how can he love God whom he has not seen? And this commandment we have from him, that he who loves must love his brother also. Amen. 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 Praise the So Lord. this was actually verse 20 and 21. तो खुदावंद के पाक कलाम के पढ़े जाने पे इसकी बरकत हो। मैं इसको उर्दू में भी अपने व्यूअर्स के साथ पढ़ना चाहूँगी। पहला यूहन्ना उसका 4 बाब और उसकी 20 और 21 आयत को हम आपके सामने पढ़ेंगे। अगर कोई कहे कि मैं खुदा से मोहब्बत रखता हूँ और वो अपने भाई से अदावत रखे तो झूठा है, क्योंकि जो अपने भाई से जिसे उसने देखा है मोहब्बत नहीं रखता, वो खुदा से भी जिसे उसने नहीं देखा मोहब्बत नहीं रख सकता। और उसकी 21 आयत में कुछ यूँ लिखा है,
और हमको उसकी तरफ से ये हुक्म मिला है कि जो कोई खुदा से मोहब्बत रखता है वो अपने भाई से भी मोहब्बत रखे। खुदा के कलाम के पढ़े और सुने जाने पर उसकी बरकत हो। Amen. तो फरकान आप शेयर करना चाहेंगे इस That is verse के such a बारे में? beautiful verse, Brother Irfan. I'm so glad that you were able to choose that and the Holy Spirit guided you to choose that verse. I mean, that is so true, because you see our viewers that whoever like claims to love God yet hates a brother or sister is a liar. You know how? And then it goes on to say, for whoever does not love their brother and sister whom they have seen cannot love God whom they have not seen. So all the time we often go about our days. Sometimes we even are so nice to all our co-workers or some people that we see outside sometimes. But then you see in the homes of a lot of people I know, they don't even talk to their brother or sister. They despise their brother or sister or uncle or aunt or people that or their relatives. And that is so hard and that's so sad to see that, because the Word of God teaches us that whoever claims to love God yet hates his brother or sister is a liar. So we should all love God first of all, just like Jesus says, love the Lord your God with all your heart, with all your mind, and with all your power, and then love your neighbor as yourself. Amen. And that is a command that Jesus himself taught us. Amen. That we should love our neighbor as ourselves. And that comes in a form of your brother or sister is very important. And you know, through Christ, we are all brother and Brothers and sisters. sisters, yes. Amen. Through Christ, we are all one body in Christ Jesus. What do you think about this? Amen, amen. You are absolutely right, फरकान. जिस तरह फरकान ने व्यूअर्स आपको बताया कि जो भाई हैं वो हमारे मसीह में हम सब बहन भाई Yes. हैं. ज़रूरी नहीं है, मैं समझती हूँ इरफान भाई, मैं ज़रूरी नहीं समझती कि भाई वही नहीं होता जो आपके माँ बाप का बच्चा ही होता है, जो आपके साथ रहता है. भाई बहन हमारे वो लोग भी, हमारी कलीसिया भी हमारी बहन भाई है, हमारे रिलेटिव्स भी, और वो लोग जो मसीह में हैं, जो मसीह को प्यार करते हैं, वो सब हमारे बहन भाई हैं. Amen. और हमें, अगर हम में मसीह की मोहब्बत है तो हम में अपने भाइयों की मोहब्बत होना ज़रूरी है, भाई के लिए, बहन के लिए. क्योंकि क्या खूबसूरत खुदा उनके कलाम में लिखा है इरफान भाई, कि मैं समझती कि उसने खुदा ने कहा, यहाँ पे खुदा उनका कलाम फरमाता है कि अगर आपने अपने भाई से ही नहीं मोहब्बत रखी Yes. जिसे आप देख सकते हो, हैं. तो खुदा से क्या मोहब्बत रखोगे जिसको हम देख ही नहीं सकते. और इसकी एक बहुत खूबसूरत बात मुझे यहाँ पर मिलती है इसकी वर्स 21 में, 21वीं आयत में, और हमको उसकी तरफ से ये हुक्म मिला है. ये सिर्फ बताया नहीं गया, ये एक हुक्म है, ये ऑर्डर है खुदा का कि जो हमें ज़रूरी करना चाहिए. क्या कहना चाहेंगे इरफान भाई आप इस बिल्कुल, बारे में? और ये हुक्म मिला है हमें खुदावंद की तरफ से कि हमें ऐसा ही करना चाहिए. जैसे कि जब हम कहते हैं कि हम खुदा के साथ मोहब्बत करते हैं, तो फिर हमें अपने भाई के साथ भी मोहब्बत रखनी चाहिए. वो लोग जो हमारे साथ कलीसिया में होते हैं, जिन लोगों को हम चर्च में मिलते हैं, उन भी हमारे भाई बहन भाई हैं, क्योंकि खुदा में हम सब एक दूसरे के बहन भाई हैं. तो उनके साथ भी हमने वैसे ही मोहब्बत रखनी है और उनके साथ हमने नफरत नहीं करनी. तो जब हम ये करेंगे और हम खुदावंद के हुक्मों को मानेंगे, तो खुदा हमारी दुआओं को सुनता है और खुदा हमें करीब आने के लिए इजाज़त देता है. जब हम उसके कलाम को पढ़ेंगे, उसके हुक्मों को मानेंगे, तो खुदा हमारी दुआओं को सुनेगा. और फिर चाहे कोरोना वायरस हो, चाहे जो मर्जी हो, खुदा हमें इन सब चीज़ों से बचाता है और हमारे गुनाहों को माफ़ करता है. आमीन, आमीन. आमीन. मुझे बहुत बरकत मिली इरफान भाई आपकी इस बात से. कलाम मुक़द्दस व्यूअर्स फरमाता है कि हम जितने मसीह में हैं, हम सब उसके अज़ा हैं. Yes. और मैं समझती हूँ कि अगर हाथ कहे कि, अगर कान कहे कि मैं देख नहीं सकता, तो आँख ये नहीं कह सकती कि मैं कैसे सुनूं. बिकॉज आँख और कान अगर एक जगह फिक्स है तो ही हमारी शेप बन रही है. और अगर कान अपने आप को बड़ा समझे तो भी नहीं बुरी बात है. और अगर होंठ अपने आप को बुरा समझे या नाक अपने आप को कहे कि मैं ही सब कुछ हूँ, वो भी नहीं. हर एक का जो पार्ट है वो मसीह का जिस्म है. मसीह के जिस्म में हर किसी की एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है और हम सब मसीह के
जिस्म होते हुए बहन भाई हैं और भाई भाई हैं। और कलाम मुकद्दस क्या खूब फरमाता है, फर्क है साम 133 में, देखो कैसी अच्छी और खुशी की बात है कि भाई बाहम मिलकर रहे। ये उस बेशकीमत तेल की मानिंद है जो सर पर लगाया गया और बहता हुआ दाढ़ी पर, यानी हारून की दाढ़ी पर, बल्कि उसके पैराहन के दामन तक जा पहुंचा। Amen. It's so beautiful. And you know, that is the word of God, that we should all love one another and we should live in unity. And I'm so glad to say to my dear brother and sister that I truly have such wonderful brother and sisters that we live in unity, because the word of God teaches that. And you know, just this verse reminds me of earlier I was with our my two beautiful daughters and my family. We were watching The Prince of Egypt, and we saw the story of Moses and Aaron, and how God, even through the midst of trouble, He delivered the Israelites and took them to the better place. And even then we see that how Aaron and Moses, they loved each other and they trusted on each other. And you know, the word of God said that Aaron used to speak for Moses, and you know, they had to have unity between that brother and sister. And God wants all of us to have that kind of unity between one another. Amen. और आखिर में मैं जॉन बुक ऑफ जॉन उसकी 13 चैप्टर में से वर्स 34 और 35 शेयर करना चाहूँगा। खुदावंद यीशु मसीह ये फरमाते हैं, A new commandment I give to you, that you love one another, as I loved you, that you also love one another. By this all will know that you are my disciples, if you have loved one another. So, जब खुदावंद यीशु मसीह का ये हुक्म है हमें कि हम एक दूसरे के साथ प्यार और मोहब्बत के साथ रहें, और इससे हमें लोगों जाने कि हम मसीह में चलते हैं, हम मसीह के बंदे हैं, हम उसके डिसाइपल्स हैं, तो ये कितनी प्यारी बात है। अगर आप पढ़ना चाहिए उर्दू में। जी, मैं उर्दू में पढ़ती हूँ। मुकद्दस यूहन्ना रसूल की अंजील उसका 13 बाब और उसकी 33 से 34 आयत में लिखा है, उसकी 34 से 35 आयत में लिखा है, मैं तुम्हें एक नया हुक्म देता हूँ कि एक दूसरे से मोहब्बत रखो, जैसे मैंने तुमसे मोहब्बत रखी, तुम भी एक दूसरे से मोहब्बत रखो। अगर आपस में मोहब्बत रखोगे तो इससे सब जानेंगे कि तुम मेरे शागिर्द हो। आमीन। इस जगह मैं देखती हूँ कि फिर खुदावंद के कलाम में लिखा है कि ये भी हुक्म है कि एक दूसरे से मोहब्बत रखनी है, क्योंकि मैं समझती हूँ कि अगर हम एक दूसरे से ही नहीं मोहब्बत रखेंगे तो हम अपने आने वाली नस्लों को क्या सबक देंगे। बिल्कुल, क्योंकि कलाम मुकद्दस हमें हर एंगल से समझाता है। अगर आज हम में यूनिटी या हम में आपस में बाहमी सलूक या मोहब्बत नहीं होगी तो हमारी आने वाली जो नस्लें हैं या जो हमसे छोटे हैं वो भी एक दूसरे के साथ सलूक नहीं रखेंगे, क्योंकि मैं समझती हूँ कि बच्चे वही देखते हैं जो उनके पेरेंट्स करते हैं या उनके बड़े बुजुर्ग कर रहे होते हैं। बिल्कुल ठीक कहा आपने सना, मुझे बहुत बरकत मिली आपकी बातों से। आमीन। तो व्यूअर्स, आज हम आपको यही मैसेज देना चाहेंगे, आपको इनकरेज करना चाहेंगे। कलाम मुकद्दस फरमाता है, ये हमारे लिए हुक्म है कि जिस तरह मसीह ने हमसे मोहब्बत रखी है, हमें एक दूसरे से मोहब्बत रखनी है। और हम आपको मैसेज देना चाहेंगे, ये एडवाइस करना चाहेंगे कि अगर आप किसी अपने भाई से या बहन से या अजीज रिश्तेदार से या पड़ोसी से या किसी से भी अगर आप नाराज़ हैं तो अपनी नाराज़गी को ख़त्म कीजिए, उससे जाकर मिलाप कीजिए, क्योंकि कलाम मुकद्दस फरमाता है कि शाम ढलने से पहले तुम्हारी खफगी दूर हो जानी चाहिए। ऐसा ना हो कि खफगी को दूर करने का मौका ना बाद में मिले। उठिए, अभी जाइए और अपने भाई से मुलाकात कीजिए, उसको अपना लव शो कीजिए, क्योंकि अगर हम अपने भाई को लव शो करते हैं तो हमसे मसीह की मोहब्बत की खुशबू आती है। आमीन, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। यस, प्रेज द लॉर्ड। तो इसी के साथ साथ व्यूअर्स, प्रोग्राम का वक्त है कि हम आपसे इजाज़त लेने से पहले हम अपने प्रोग्राम की एंडिंग प्रेयर करेंगे और खुदा हाफिज़ आपको कहेंगे। तो मैं चाहती हूँ कि हम इरफान भाई के साथ मिलकर नया फरकान आपके
व्यूअर्स के लिए इरफान भाई हमारे दुआ कीजिएगा, उनकी कोई भी प्रॉब्लम्स चल रही हैं या कोई बीमार है इस वक्त हमें देख रहा है स्क्रीन पर, उसके लिए दुआ कीजिएगा। और ख़ास तौर पर जिस तरह आज हमने शेयर किया कि अगर किसी में नाराज़गी है तो वो मसीह की मोहब्बत में बंद। कदूस कदूस मुकद्दस खुदा बाप, खुदावंद हम तेरे हुजूर में आते हैं, हमारी दुआओं को सुन और कबूल कर खुदावंदा। जो लोग इस वक्त हमें देख रहे हैं उनको बहुत बरकत देना खुदावंदा, उनके सिर पर अपना हाथ रखना, फरिश्तों पे तैनात रखना, अपनी आग को जलाए रखना खुदावंद बाप। खुदा बाप, जो भी कोई उनके दिल में रंजिश है अपने भाई की तरफ, अपने पड़ोसी की तरफ, अपने बहन की तरफ, जिसकी तरफ भी खुदावंदा वो रंजिश जाती रहे और वो उनके साथ मिलें, ताकि कि लोग देखें कि खुदा बाप ये तेरे बेटे हैं, तेरी बेटियां हैं, ये तेरे नाम को लेके आगे चले खुदावंदा, और दूसरे लोग इनके हम्बलनेस को देख के इनकी तरफ खींचे चले आएं और तेरी तरफ खींचे चले आए खुदावंदा, ताकि कि ये हम सब तेरे आगे घटें और तू अफजल हो, तू तेरे खिलाफ खुदा बाप। खुदा बाप, जो भी लोग हमें इस वक्त देख रहे हैं, चाहे उनके अंदर जो भी बीमारी है, जो भी कुछ उनकी मन्नत मुरादें हैं खुदावंदा, उनको सुनना और उनको बख्श देना खुदा बाप। खुदा इस वक्त जिस इंसान को भी जो कोरोना वायरस है या कोई भी बीमारी खुदा, उसको खुदा यीशु मसीह के लहू से धो देते हैं और बिल्कुल हील कर देते हैं खुदा बाप। अपने प्यारे बच्चों के अपने प्यार हाथ बनाए रखना, हम सबके साथ रहना, हमारी दुआओं को सुन ले और बख्श दे खुदा बाप। मांग लेते तेरे पाक और जलाली खुदा यीशु मसीह के मीठे नाम में, आमीन आमीन आमीन। थैंक यू सो मच इरफान भाई, आपके इस खूबसूरत कलाम में से वर्स के लिए, आपकी बातों के लिए, और खुदावंद आपको और बढ़ाए, तरक्की दे, और खुदावंद का पाक हो आप में इसी तरह काम करते हैं। God bless you, brother, and may God continue to use you for His mighty glory. Amen. So viewers, हमें दीजिएगा इजाज़त इस मैसेज के साथ कि आप जहाँ रहें खुश रहें, सेहत तंदुरुस्ती सलामती के साथ रहें, और खुदावंद का दहना हाथ आपको हमेशा संभाले रखे। Amen. Amen. God bless you all. Bye bye.